Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Today we are going to read Unit 2 Computer Security Threats. Students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to define virus, worms, adware, hacker. Now that a virus, worm, and adware can spread through infected flash drives or disks, email attachments, surfing insecure websites, installing paired software, define antivirus, virus definitions, and updates. Now the following widely used antivirus software: Cybernetic, McAfee, AVG, Scan a computer for viruses. इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं कि आप सब इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन सारी चीज़ों को वायरस फॉर्मेटवेयर और हैकर्स की को डिफाइन करने के काबिल हो जाएंगे। आप ये जानने के काबिल हो जाएंगे कि ये वायरसेस वॉर्म्स एडवेयर्स कैसे फैलते हैं, एंटीवायरस क्या है, वायरस डेफिनेशन और अपडेट्स क्या हैं, और सराउंडिंग मैकफी एवीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के बारे में आप जानेंगे। और आप ये भी जान पाएंगे कि कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है तो उसको अपने स्कैन कैसे करना है। यूनिट इंट्रोडक्शन. Computer systems are in danger of many threats that can cause various types of harms, resulting in significant losses. This unit will discuss the common types of computer security threats, the ways through which computer infection spreads to other computers, and techniques to prevent computers. Students will also learn how to scan computers to detect and get rid of malicious programs. अब कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डेंजर में होते हैं, मुख्तलिफ उसमें होते हैं कि कोई थ्रेट जो है। अब कंप्यूटर सिस्टम्स जो है वो मुख्तलिफ थ्रेट्स की डेंजर्स में होते हैं, जिनसे उन कंप्यूटर्स को मुख्तलिफ किस्म का हार्म पहुंच सकता है, मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशंस को लॉस पहुंच सकता है। तो हम इस चैप्टर में उन सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में बात करेंगे, हम उन तरीक़ों के बारे में बात करेंगे कि अगर कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है या कोई मैलवेयर या हैकर कोई कुछ भी, अगर आपका कोई भी सिस्टम में कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस होने वाली है तो उसको सेव करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या तरीके हैं और हम उनको कैसे स्कैन कर सकते हैं, कैसे हम उन वायरसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं और इन मलिशियस प्रोग्राम से निजात हासिल कर सकते हैं। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स. कंप्यूटर security threats may be a computer program, an event, or even a person which causes loss of data affecting the working of a computer and stealing of information. अब कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स कोई कंप्यूटर प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपके कंप्यूटर की वर्किंग को इफेक्ट कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है। अब टाइप्स ऑफ थ्रेट्स. कंप्यूटर सिस्टम्स आर वल्नरेबल टू मैनी थ्रेट्स ranging from errors, harming stored data, information, or corrupting programs installed on the computers. The following are some common types of threats to computer: virus, worms, hackers, adware. अब कंप्यूटर सिस्टम जो है वो वल्नरेबल होते हैं मैनी थ्रेट्स के लिए। अब इसमें एरर्स, आपका कोई स्टोर डाटा को कोई हार्म पहुंचा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी स्टील हो रही है, कोई प्रोग्राम्स आपके करप्ट हो रहे हैं जो कि आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स है ना, उनकी टाइप्स में वायरस, हैकर्स, वॉर्म्स, एडवेयर्स, ये कॉमन टाइप्स हैं। अब वायरस क्या है? Computer virus is the most common and well-known computer security threat. A computer virus is a program written intentionally to alter the way of a computer operates without the permission of knowledge of the user. A virus replicates and executes itself by attaching copies to other files such as program files or documents so that the user checks them and the virus activates. Virus. What is virus? Computer virus is the most common and well-known computer security threat. A computer virus is a program written intentionally to alter the way a computer operates without the permission of knowledge of the user. A virus replicates and executes itself by attaching copies to other files such as program files or documents so that the user checks them and the virus activates. अब ये कंप्यूटर वायरस होते हैं, मोस्ट कॉमन जो सिक्योरिटी थ्रेट है ना कंप्यूटर्स को, वो वायरस से होता है, कंप्यूटर वायरस से। अब कंप्यूटर वायरसेस जो है वो मोस्ट कॉमन और वेल नोन कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट है। और कंप्यूटर वायरस जो है वो एक प्रोग्राम है जो इंटेंशनली राइट अप किया जाता है कि एक कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है और जो यूज़र उसको यूज़ कर रहा है उसकी परमिशन के बगैर ये वायरस इंटर हो जाता है। ये वायरस क्या करता है? ये रिप्लिकेट करता है, एक्सिक्यूट करता है by attaching other copies to other files, कि ये वायरस है तो ये किसी भी प्रोग्राम के साथ ये ओपन हो जाएगा और यूज़र क्योंकि नहीं जान रहा होता कि ये कोई वायरस है
तो जब इसको चेक करता है तो ये आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आपके सामने ओपन होती है। जब आप इसको ओके कर देते हैं तो ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है। अब when activated, a virus may damage or delete files, erase data in hard disk, cause erratic system behavior, display annoying messages, etc. Examples of viruses are NYB, NTXC, Cascade, Frodo, Win95, and Zemist A, etc. Figure 2.1 show an alert message caused by a virus, and Figure 2.2 shows some virus infected files. अब जब वायरस एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या क्या काम करता है? एक तो ये आपकी फाइल्स को डैमेज कर देता है, डिलीट कर देता है, हार्ड डिस्क में डाटा जो है उसको रेज कर देता है, एराटिक सिस्टम बिहेवियर को कॉज करता है, समटाइम्स अनोइंग मैसेजेस डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं। अब वायरसेस की जो एग्जांपल है NYB, NTXC, कैस्केड, फ्रोडो, Win95 और जिमिस्ट जो है मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल्स हैं वो। अब आपके फिगर 2.1 में आप देखें, ये ऐसा एक बॉक्स है जो आपका मैसेजेस ड्यू टू वायरस के, एक वायरस जब आता है तो आपके सामने इस तरह का मैसेज अपीयर हो जाता है। और फिगर 2.2 में अब आप देखेंगे कि कुछ फाइल्स जो हैं वो कैसे इन्फेक्ट हो गई हैं। ये इन्फेक्टेड फाइल हैं, ये इस फाइल के थ्रू ये बाकी फोल्डर्स और फाइल्स को भी इन्होंने डैमेज करना शुरू कर दिया। अब worms. Computer worms are malicious programs that replicate and spread independently without user action and harm the computer. Worms spread through network and over the internet to computers that are connected to the internet. Worms can also spread by copying themselves from disk to disk or by email. SQL Slammer, the Blaster worm, Sasser worms, Militia, and I Love You are examples of computer worms. अब computer worms ये malicious प्रोग्राम होते हैं। कंप्यूटर worms जो है वो malicious प्रोग्राम होते हैं, ये भी रिप्लिकेट करते हैं और स्प्रेड करते हैं, और इसमें यूज़र का कोई भी एक्शन नहीं होता और ये कंप्यूटर को हार्म कर देते हैं। अब ये worms स्प्रेड कैसे होते हैं? नेटवर्क के थ्रू और इंटरनेट से कंप्यूटर में डायरेक्ट, और इंटरनेट से उन कंप्यूटर्स में जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। अब worms कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय कॉपिंग देमसेल्व्स फ्रॉम डिस्क टू डिस्क। अब ये कैसे स्प्रेड होते हैं? ये डिस्क टू डिस्क कॉपी हो जाते हैं या किसी ईमेल के थ्रू। अब एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर वर्म्स जो हैं वो क्या हैं? एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर वर्म्स SQL स्लैमर, द ब्लास्टर वर्म, सैसर वर्म्स, मलेशिया और आई लव यू। ये जो इस तरह की नेम्स आपके सामने कंप्यूटर्स में ओपन होते हैं, ये आपके कंप्यूटर वर्म्स की एग्जांपल है। कंप्यूटर वर्म्स कैन डिस्ट्रॉय फाइल्स इन द सिस्टम, slows down the computer, cause some programs to stop working. अब कंप्यूटर वर्म्स क्या करते हैं? आपके सिस्टम में जो फाइल्स होती हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आपका कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देते हैं, आपके प्रोग्राम्स की वर्किंग को स्टॉप कर सकते हैं। Adware is a software which automatically plays, displays or downloads advertisements to a computer, usually without user's knowledge. These advertisements can be in the form of a pop-up. They record users' behavior on the internet, display ads, and can even download other malicious software onto the computer. They may also be in the user interface of the software or on a screen presented to the user during the installation process. Figure 2.3 shows an adware message which may be harmful when activated. Adware क्या है? Adware एक सॉफ्टवेयर है। Adware क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो खुद ब खुद प्ले करती है, डिस्प्ले करती है और डाउनलोड करती है एडवर्टीजमेंट्स कंप्यूटर पे, और ये यूज़र के नॉलेज में नहीं होता। अब ये एडवर्टाइजमेंट्स पॉपअप फॉर्म में भी हो सकती हैं, और ये आपके यूज़र का बिहेवियर जो है वो इंटरनेट पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, एड डिस्प्ले कर देते हैं, और डिफरेंट मलिशियस सॉफ्टवेयर्स जो भी कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उस पर मुख्तलिफ मलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी कर लेते हैं। और ये आप दे में ऑल्सो be in the user interface of the software on a screen presented to the user during the installation process. अब आप जब एडवेयर मैसेजेस को करते हैं, एक्टिवेट जब हो जाते हैं, तो ये कैसे हार्मफुल होते हैं? ये देखें, ये आपके सामने एक ओपन हुआ है फिगर, इसमें आप देखें द स्कल इम्प्लांट कम्स इन दिस डेकोरेटिव टेंट, क्लिक हियर फॉर इन्फो। आपने क्लिक कर दिया और अब डज इट इवन मैटर, ये आपके पास एक एड डिस्प्ले हुआ, क्लिक हियर। आप इसको करेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर एडवेयर आ जाएगा। हैकर्स, अब हैकर्स, हैकिंग बाय कैन बी डिफाइंड एज द
unauthorized use of computer network and its resources. People who indulge themselves in computer hacking activities are called hackers. Hackers are computer experts who use their expertise for malicious purposes. अब hackers क्या है? Hacking जो है वो आप इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि हैकिंग अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ कंप्यूटर होता है, नेटवर्क और इसके रिसोर्सेज को, कि बगैर किसी परमिशन के वो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, नेटवर्क को यूज़ करते हैं और उसके रिसोर्सेज को। और जो इस सारे प्रोसेस में जो लोग ये सारा काम करते हैं कंप्यूटर हैकिंग में, उनको हम क्या कहते हैं? हैकर्स कहते हैं। और हैकर्स जो हैं वो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं जो डिफरेंट मिलिशियस पर्पसेस के लिए आपके कंप्यूटर्स को हैक करते हैं। हैकर्स स्टील client or customer information, credit card details, and social security numbers for identity fraud or theft, passwords, email addresses which may be used for spamming. Hackers अब क्या स्टील करते हैं? Hackers मोस्टली आपकी इंफॉर्मेशन स्टील करते हैं, क्लाइंट की या कस्टमर की क्रेडिट कार्ड्स को हैक कर लेते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स को, फ्रॉड और थेफ्ट के लिए कोई भी चीज़ आपकी वो हैक कर लेते हैं। आपके फेसबुक हो गया, आपका कोई भी सोशल ऐप है उसके पासवर्ड्स को, आपके ईमेल एड्रेसेस को, और ईमेल एड्रेसेस को फिर वो स्पैम्स के लिए यूज़ करते हैं। Indicators of security threat. The computer runs slower than usual. The computer locks up or stops responding. The computer suddenly restarts on its own. Frequently used programs become suddenly slow to load and operate. Applications and disk drives are suddenly inaccessible. Unusual error message appear. Unexpected icon appears on the desktop. And device software is disabled or does not run. अब सिक्योरिटी थ्रेट्स में सबसे पहले क्या होता है कि आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, समटाइम्स लॉकअप हो जाता है, समटाइम्स वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, समटाइम्स खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाता है, समटाइम्स आपके जो प्रोग्राम्स आप मोस्टली यूज़ करते हैं जैसे आप MS वर्ड हो गया या कुछ भी, तो वो स्लो हो जाएंगे और उनको ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। अब आपकी कुछ एप्लीकेशन एंड डिस्क ड्राइव जो हैं वो इनएक्सेसिबल हो जाएंगी जल्दी से, आप उन तक एक्सेस ही नहीं ले सकोगे। फिर आपके एरर मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, आपके आइकन्स जो आप नहीं भी एक्सपेक्ट करते आपके डेस्कटॉप पे वो आइकन्स अपीयर हो जाएंगे, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो या तो डिसेबल हो जाएगा या वो फिर रन नहीं करेगा। A ways through which virus worms and adwares spread. There are different ways through which a virus worms and adware spread from one computer to other computer. A virus worms and adware can spread through infected flash drives or disks, surfing insecure websites, email attachments, installing pirated software. ये वो चार चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका वायरस वर्म एंड एडवेयर स्प्रेड हो सकता है। आपकी इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क के थ्रू, ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू, सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स के थ्रू, कि आप वेबसाइट्स जो इनसिक्योर वेबसाइट्स हैं उन पे आप जाते हैं, आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं, तो आपके ये वो तरीके हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू आपके ये वायरस वर्म्स एंड एडवेयर स्प्रेड होते हैं। इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स आर डिस्क्स. Flash drives and disks are convenient, popular, and easy to use storage devices. Flash drives and disks are the main source of spreading viruses among computers. Once an infected flash drive or a disk is connected to a healthy computer, it becomes infected with viruses. In this way, virus spread from one computer to the other. जैसे आपका USB हो गया, आपका कोई भी ऐसी डिवाइस या कोई भी ऐसी ड्राइव या कोई भी ऐसी डिस्क जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अटैच करेंगे हम, तो अगर उस एक कंप्यूटर में या एक उस फाइल में कोई भी वायरस है तो वो आपका वायरस या आपकी इन्फेक्टेड फाइल जो है, जब आप वो USB या फ्लॉपी डिस्क की जो भी आपकी ड्राइवर डिस्क है, आप जब उसको दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाएगा। ईमेल अटैचमेंट्स. Email attachment is a file that can be sent with an email from one computer to the other. An email virus is a computer code sent as an email attachment. If activated, it may cause some harmful effects such as destroying certain files on the hard disk and causing the attachment to be forwarded to everyone in the address book. Email viruses distribute themselves automatically by email. अब email attachment में क्या होता है कि एक फाइल आपकी सेंड की जाती है email from one computer to the other. अब email virus जो है वो क्या होता है, एक कंप्यूटर कोड होता है. ईमेल वायरस इज अ कंप्यूटर कोड. ईमेल वायरस इज अ कंप्यूटर कोड जो आपके ईमेल अटैचमेंट के साथ सेंड हो जाएगा. अब अगर उसको एक्टिवेट करेंगे तो ये इससे हार्मफुल इफेक्ट होगा, इससे आपकी मुख्तलिफ फाइल्स जो आपके हार्ड डिस्क में है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, या ये जो अटैचमेंट है
ये अगर आपके एड्रेस बुक में जितने भी आपके और कॉन्टेक्ट्स हैं उन तक भी ये अटैचमेंट जो है वो पहुंचेगी, और फॉरवर्ड जब हम करेंगे कोई भी फाइल तो वो उसके साथ बाकी कॉन्टेक्ट्स जो आपके एड्रेस बुक में उन तक भी पहुंचेंगे। ईमेल वायरस डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली बाय ईमेल। अब ईमेल वायरस किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? ऑटोमेटिकली हो जाते हैं ईमेल्स के थ्रू। अब these viruses require the users to double click on the attachment containing viruses. This causes the malicious code to mail itself to other people from that computer. The best defense against email viruses is to never open an unknown email. Figure 2.4 shows an email attachment thread. अब वायरसेस, ये वायरसेस जो होते हैं इनको जब यूज़र डबल क्लिक करते हैं किसी भी अटैचमेंट को जो के वायरस कंटेन करते हैं, तो ये आपकी मिलिशियस कोड जो है वो आपके ईमेल को, तो ये दूसरे लोगों को जो आपके कंप्यूटर के साथ जिनकी एड्रेस बुक में जिनका भी कांटेक्ट होता है उन तक भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब इसका बेस्ट डिफेंस क्या, बेस्ट तरीका क्या है बचने का, कि आप कभी भी किसी भी अननोन ईमेल को ओपन ना करें। अब जैसे ये देखें आपके पास ये फिगर है, इसमें आपका सब्जेक्ट काइंडली चेक द अटैच्ड कमिंग फ्रॉम मी, और ये आपके पास एक अननोन अटैचमेंट है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये आपकी ईमेल के साथ कोई वायरस कनेक्टेड है, वायरस है, ईमेल वायरस है जो आपकी फाइल्स को और आपके बाकी जितने भी आपकी एड्रेस बुक में जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनकी फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। Surfing insecure websites. A website that is set up to spread a virus or for some other unethical purpose is an insecure website. These websites engage in questionable or unethical practices and attempt to automatically access the computer when user visits them. Install adware that may cause a flurry of pop-ups to appear on the screen. Figure 2.5 shows an alert message about an insecure website. अब वेबसाइट्स जो वायरसेस स्प्रेड करने के लिए सेटअप की जाती हैं या अनएथिकल पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती हैं वो इनसिक्योर वेबसाइट्स हैं। जब हम इन वेबसाइट्स को करते हैं, विजिट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर तक इन वेबसाइट का एक्सेस होता है और हमारे इनमें एडवीओ इंस्टॉल हो जाता है, जिससे डिफरेंट पॉपअप्स बार बार आते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो अब हम इस फिगर में देखते हैं कि ये इस तरीके का पॉपअप आएगा, तो हम जब इसको देखेंगे, मैसेज को हम रीड करेंगे या हम क्लिक कर देंगे बाय मिस्टेकनली या जानबूझ के, तो हमारे उसमें एडवेयर आ जाएगा आपका थ्रू different websites. Installing pirated software which has been duplicated or distributed without authorization is called pirated software. Pirated software may be faulty or loaded with malware and may contain viruses. Pirated software can threaten the safety of a computer users. These software products may be used to steal personal information, load a computer with viruses, or engage in activities which can harm the computers. अब pirated software के होते हैं कि pirated software या तो duplicated होते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं विदाउट ऑथराइजेशन, और इसलिए इनको पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और ये भी फॉल्टी और लोडेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं विद मैलवेयर, और इनमें वायरसेस होते हैं। अब ये आपके कंप्यूटर्स को थ्रेट करता है। और अब ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर कैसे थ्रेट करता है कि ये आपकी या तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेगा या कंप्यूटर में वायरस डिफरेंट आ जाएंगे लोड। जब आप इस पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो आपके कंप्यूटर में डिफरेंट वायरसेस आ जाएंगे और डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो आपके कंप्यूटर को हार्म करेंगी।